ہم کو میزبانی آپ کی ہو گئی میسر ہم کو مہربانی آپ کی آگے صد مرحبا ہے مہربانی آپ کی بچے بچے کی زباں پر ہے کہانی آپ کی رنج و غم جتنے تھے سب دل سے ہمارے دور ہوئے آپ لائے ہیں یہاں تشریف ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اس کے بعد اسکول کی ننھی منی بچیاں اپنے خوبصورت انداز میں مہمان گرامی اور مہمان خصوصی کو ویلکم ٹیبلو پیش کریں گی، تو اس کے لیے میں کلاس 1 اور ٹیب کی بچیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ویلکم ٹیبلو پیش کریں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کلیپنگ کریں پلیز۔ اپنے خوبصورت انداز میں مہمان خصوصی اور تمام مہمانوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ پروگرام کا سلسلہ آگے کرتے ہیں۔ دیکھا نہ کوئی فرحاد کے بغیر آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ سچ یہ ہے ہم ہی محبت کا سبق پڑھ نہ سکے، ورنہ ان پڑھ تو نہ تھے ہم کو پڑھانے والے۔ میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں ہوتا تھا، میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں ہوتا تھا، استاد نے تراش کر ہیرا بنا دیا۔ اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا حفصہ ذاکر کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں جس کا عنوان ہے استاد کا مقام۔ میرا ساتھا کرام اور ہم تاد ہوتے ہیں، میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل تک پہنچا کر کتنا شاد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے استاد کا مقام۔ صدر علی وقار، جب آج مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ شاید میں اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤں گی۔ ادب بھی ایک کرینہ ہے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ جناب محترم، تلوار استاد کا ساتھ دنیا میں نہیں۔ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دے، استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دے، استاد وہ ہے جو کیسات بھی ہے میں ہمارے وطن بھی ہے اور غرض کے استاد واجب الاحترام بھی ہے۔ جناب محترم، امام غزالی نے بھی استاد کی بات ہے کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ جناب محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو معلم کہا، یعنی استاد۔ اس رشتے کو اعلیٰ مثال بنا دیا ہے۔ جناب محترم، ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں نکھار دیتے ہیں۔ جناب محترم، میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دھمک کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب محترم، اب آخر میں ایک شعر سے چاہتی ہوں۔ اے میرے استاد تو ہے ذی
शीशा, ऐ मेरे उस्ताद तू है शीशा, तेरी अजमत तेरी रिफत को सलाम, इल्म और हिकमत का इल्म बेदार है तू, काफिला हक का सलार है तू, इस जमाने में जहालत के खिलाफ हर घड़ी पर सरे बेकार है तू, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। किताब फितरत के सरवर पर जो नाम अहमद रकम ना होता, किताब फितरत के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उबर न सकता वजूद लोहो कलम न होता, तेरे गुलामों में नमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाए अजल से तेरा खताब खैरुल उमम न होता, न रूए हक से नकाब उठता, न जुल्मतों का हिजाब उठता, फरोगे बख्शे निगाह इरफा अगर चरागे हरम न होता, जमीन न होती फलक न होता, अरब न होता अजम न होता, ये महफिल कोनो मका न होती अगर वशाहे उमम न होता, ये महफिल कोनो मका न होती अगर वशाहे उमम न होता। इसके बाद मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत दूंगा शयान अहमद को स्टेज पर आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे दिलों को नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर कर रख सकते थे। चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेह क्या चीज़ है हम तो तोप से भी लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल में बैठा कमक दे, थक जाऊं तो जज्बे को मेरे और कमक दे, तहरीर से मेरी रगे एहसास जवा हो, तकरीर में बिखरे हुए शोलों की लपक दे। इसके बाद तकरीर के लिए दावत दूंगा अनम बशीर को स्टेज पर आए और तकरीर पे। मेरे उस्ताद कराम और हम जमात के साथियों अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौजू पर खुशाही करने का मौका मिला, उसका अनवान है नेकी का पैगाम। मेरा आज का पैगाम नेकी के बारे में है कि किसी छोटी नेकी को भी कम ना समझो। अक्सर लोग नेकी करने के छोटे छोटे मौके ज़ाया कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि हमें बड़े बड़े कामों का हमारे सामने होता है और हम इसे हकीर समझकर ज़ाया कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को सलाम करना नेकी है, किसी को अच्छा मशवरा देना नेकी है, करके भी नेकी कमा सकते हैं। पानी पिलाकर अगर आपका कोई दोस्त बीमार है तो इसका ख्याल रखकर आप बहुत खूबसूरत बात बताऊं कि हमारा जो इस्लाम है वो हमें नेकी की तारीफ देता है। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है, हर एक नेकी करने पर सवाब मिलता है। आग में नहीं खिलता, एक बेटा किस्मत से होता मगर एक बेटी खुशकिस्मती से होती है। बेटे अगर औलादे नरीना होते हैं तो बेटियां औलादे नगीना होती हैं। बेटे नियामत हैं और नियामतों का हिसाब लिया जाता है, बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं होता। महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, महकता रहता है दिल का जहां बेटी से, ज़माने भर में बड़ी शान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो,
मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इसके बाद मैं तकरीर के लिए दावत दूंगा लारेब को, फरीद को वो स्टेज पर आएं और तकरीर पेश करें जिसका उन्वान है बेटी का मकाम। मेरे साज़ा कराम और हम जमात के साथियों अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौजू पर नकुशाही करने का मौका मिला, उसका उन्वान है बेटी। बेटी रब की रहमत होती है और रहमत का कोई हिसाब नहीं होता। दुनियावी सी बात है, जब बेटा पैदा होता है तो दुनिया वाले कहते हैं बाप की मुराद हो गया, और जब बेटी पैदा होती है लोगों के मुंह पर मारा बढ़ने लगते हैं। आगे चल के बेटा माल बांटता है, लेकिन जब दुख दर्द की बात आती है तो बेटी आ जाती है, जब हिकमत की बात आती है तो बेटी आ जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद को समझा और अपने मकसद पर ध्यान दे, खुद को समझा और अपने मकसद पर ध्यान दे, यूं ही बैठकर खुद को कोसा न कर। इसके बाद मैं टैबलो के लिए दावत दूंगा हिफ्जा और उसके साथियों को वो स्टेज पर आएं और टैबलो पेश करें। बिस्मा साजिद को तो स्टेज पर आएं और तकरीर पेश करें। वनसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका दिया गया है उसका उन्वान है कश्मीर। मैं बेटी हूँ कश्मीर की, जिसे विरसे में रोना, चीखना और लाशों के सरहाने बैठना मिला है। हैदरपुरा में 4 अफराद को शहीद कर डाला, जिनमें से ताफत, जिसकी बेटी ने ये शोर सुना तो वो बाहर आई। उसकी आंखों के सामने उसके बाप को गोली से छन्नी किया गया। वो लड़की दाड़े मार मार कर रोती रही और वो बेड़िए जोर जोर से हंसते रहे। वो बच्चे स्कूल की किताबें किससे मांगेंगे और किससे फरमाइशें करेंगे? हो कि उस लड़की का जहेज कौन अदा करेगा? वो बेवा इस बोझ को कैसे बर्दाश्त करेगी? इस तुम्हारी आंखों आसमां की तरफ देखा और पूछा कि अगर वो ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है? सदर अली वकार गोली इस पार से चले या उस पार से चले, बच्चे हमारे ही यतीम होंगे, कलेजे हमारी ही माँ के छन्नी होंगे और नौजवान हमारे ही गलियों में घसीटे जाएंगे। अरे दुनिया के मुंसिफों, हमारे खून से नीलम सुर होते रहे और तुम इस खून पर सियासत करते रहे। हमारी लाशों पर तजाती मंडियां कायम हुई और तुम अपने इक़्तिदार की हासिल आजादी को बेचते रहे कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी। अपनी हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम बेज़मीर। कागज के सिवाज दामनशुदा सोफों पर बैठकर पीतल के बने हुए खिलौनों की आवाज पर बोलने से आजादियां नहीं मिला करती, वो आप देखने से आजादियां नहीं मिला करती। हमें एक बार फिर कलंदर की सोच को अपनाना होगा, जो आजादी आजादी पुकारता हुआ दहाड़ पर झूल गया। और रही बात कश्मीर की, तो ये हमारा कश्मीर है, किसी के बाप की जागीर नहीं। सदर अली वकार बंदूक कनपटी पर हो तो सांसें कहती कहती रुक जाती है कि लेके रहे ये आजादी है हक हमारा आजादी। नौजवानों के गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ा दिया जाए तो सबर, मुजाहिदीन की मदद करने वाले घरों को जला दिया जाए तो सबर, बूढ़ों को दाढ़ी से पकड़कर गलियों में घसीटा जाए तो सबर, इस पार तोप के गोलों से घर हाक्स्तर हो जाए
بہہ چکا. اتنی سی گزارش ہے جاتے ہوئے خدا حافظ. ہاں اتنی سی گزارش ہے جب یاد ہم آ جائیں تو ملنے کی دعا کرنا. اس کے بعد میں ماجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اسٹیج کی کارروائی کو آگے بڑھائیں.